নমস্কাৰ। আজি ইণ্ডিয়ান পটাছ হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ এটা বাণিজ্যিক শাখা, যিটো ভাৰত চৰকাৰে তাক কণ্ট্ৰল কৰে আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ অনুমোদন সাপেক্ষে আমাৰ যিটো মুখ্য প্ৰডাক্ট ইণ্ডিয়ান পটাছ মিউৰিট অফ পটাছ বুলি কয়, এই পটাছটো ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো জেগাতে নাপায়। ইয়াতে ফেক্টৰীত কোনো প্ৰডাকশ্যন নহয়। এই বস্তুটো সুদূৰ প্ৰসাৰী পাশ্চাত্যৰ পৰা ভাৰত চৰকাৰৰ অনুমোদন সাপেক্ষে ভাৰত চৰকাৰে ইম্পৰ্ট কৰি জাহাজত আনি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন পৰ্টত জাহাজৰ থ্ৰুদি আনি পেলাই তাৰ পৰা প্ৰতিখন ৰাজ্যতে ভাৰত চৰকাৰৰ অনুমোদন সাপেক্ষে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰে। সেয়েহে আজি ইণ্ডিয়ান পটাছৰ তৰফৰ পৰা এই বৃহত্তৰ ওদালগুৰি জিলাত আমি এখন ক্ৰপ ছেমিনাৰৰ আয়োজন কৰিছোঁ। আমাৰ এই ক্ৰপ ছেমিনাৰৰ যোগেদি আমি এইটোৱেই জনাব বিচাৰিছোঁ যে খেতিত চবেই সাৰ দিয়ে, কিন্তু সুষম সাৰ হ'ব লাগে, যিটো বেলেঞ্চ সাৰ বুলি কয়। বহুত খেতিয়ক এতিয়াও পটাছৰ বিষয়ে নজনাকৈ আছে। গতিকে সেয়েহে তেওঁলোকক আমি জনোৱাৰ কাৰণে যে সুষম সাৰ দিলে তাৰ প্ৰডাকশ্যনটো কিমান বৃদ্ধি হয় আৰু অকল এটা সাৰ দি পেলাই তাৰ প্ৰডাকশ্যনটো কিমান কমি যায় তাৰ বিষয়ে বিশ্লেষণ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ KVKৰ যিটো কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আছে, সেই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আমাৰ লগত আমাৰ মাননীয় দীপশিখা ওজা আছে, তেখেতে বিশ্লেষণ কৰাব। আমাৰ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ ওদালগুৰিয়ে আমাৰ ফাৰ্মাৰ্ছৰ লগত তেনেকৈ মিলি যথেষ্টখিনি কাম কৰি আছে। মেইনলি আমাৰ কামখিনি হ'ল গৱেষণামূলক কিছুমান আমি ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন লওঁ, OFT কিছুমান টেষ্টিং থাকে, তাৰপিছত সেইখিনি ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন FLD হিচাপে লওঁ। সেইখিনিত আমি চাওঁ যে যোনখিনি আমাৰ ৰিকমেণ্ডেড যোনখিনি প্ৰেক্টিচেছ আছে আমাৰ জেগাত নৰ্থ বেংক প্লেইন জোন বা ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত কেনেকুৱা হয় ফাৰ্মাৰ্ছ ফিল্ডত, তাৰপিছত সেইখিনি আমি চাই মেলি আমি ৰিকমেণ্ড কৰোঁ যে ফাৰ্ডাৰ এইখিনি ধুনীয়াকৈ খেতিখিনি কৰিছে আৰু ফাৰ্ডাৰ কৰিব পাৰি। তেনেকৈ আমাৰ লগতে কিছুমান কেপাচিটি বিল্ডিং ট্ৰেইনিং থাকে, যেনেকৈ মোৰ ছইল চাইন্সৰ সাৰ কেনেকৈ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে, কি সাৰ কোনটো ক্ৰপত কি সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে, বা ধৰক তেনেকুৱা এতিয়া কেঁচু সাৰৰ প্ৰডাকশ্যন কেনেকৈ, কেঁচু সাৰৰ মানে প্ৰস্তুত প্ৰণালী কেনেকৈ বনায়, বা পচন সাৰ কেনেকৈ বনায়, অৰ্গেনিকৰ কি ধৰক কম্পনেণ্টছ আছে, বা কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰৰ যথেষ্ট মানে ৰিকমেণ্ডেশ্যন বা মেথড অফ এপ্লিকেশ্যন কিমান পৰিমাণে দিব লাগে তেনেকৈ। আৰু আমাৰ অফিচত তেনেকৈ এনিমেল ছায়েন্সৰো আছে, মানুহ আছে, ডিফাৰেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট, হৰ্টিকালচাৰৰ আছে, উদ্যান শস্য আছে, ফিল্ড ক্ৰপছৰ আছে, এগ্ৰনমি বুলি কয়, তেনেকৈ কমিউনিটি ছায়েন্সৰো আছে, তেনেকৈ ডিফাৰেণ্ট মানে চব ডিপাৰ্টমেণ্টৰে মানে মানুহ আমাৰ অফিচত আছে। সেইখিনি আমাৰ কাম কৰি থকা হৈছে। আমাৰ নলেজ দিয়া গৈ আছে কৃষকবিলাকক, সেইবিলাক এনভাইৰনমেণ্টেল ফ্ৰেণ্ডলি হয়নে নহয়? হয়, ৰিচেণ্টলি মানে অলমষ্ট গভৰ্ণমেণ্টেও তেনেকৈ ষ্টেপ লৈছে, আমিও তেনেকৈ লৈছোঁ যে আমি বেলেঞ্চ ইউজ অফ ফাৰ্টিলাইজাৰ, যোনটো আজিও ছেমিনাৰখন সেইটোৰ ওপৰতে, বা আমি কিছুমান জুডিচিয়াছ এপ্লিকেশ্যনৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ তেনেকুৱা যথেষ্ট আমাৰ এৱেৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰা গৈছে। আৰু আমাৰ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনো তেনেকৈ ইণ্টিগ্ৰেটেড ইউজৰ ওপৰত আমি কাম কৰোঁ, যাতে আমি মানে কেমিকেলো ইউজ কৰিব পাৰোঁ, অৰ্গেনিকো ইউজ কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ ফাৰ্মাৰক আমি শিকাওঁ। আৰু তেনেকৈ কৰিছে বহুতেখিনিও মানে আমাৰ এডপ্ট কৰিছে, তেনেকৈ আমাৰ কাম চলি গৈ আছে। पोटास में डिफरेंट दोनों मेजर न्यूट्रिएंट हैं, जो भी है मेजर वो 3 न्यूट्रिएंट है मेजर। उसमें फर्स्ट है यूरिया, नाइट्रोजन। यूरिया में नाइट्रोजन होता है, पोटास DAP में फास्फोरस, नाइट्रोजन। और पोटास MOP जो म्यूरेट ऑफ पोटास होता है उसमें पोटेशियम को पोटास होता है 58%, और 58 प्लस 58 अब 2 ग्रेड होता है, और 60% 2 ग्रेड होता है। तो पोटास यूरिया आज ओनली फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, यूरिया रिक्वायर प्लांट के लिए ग्रोथ के लिए, बट पोटास आज इसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूट, डेवलपमेंट ऑफ ग्रेन, डेवलपमेंट स्ट्रेंथ ऑफ प्लांट। तो यूरिया डेवलपमेंट ऑफ रूट हो गया। उसके बाद ग्रेन का क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए पोटास मेजर है। जैसे उसी सेम है, उसमें फास्फोरस भी दिया जाता है पौधे में, जो DAP रूप में है। आज की कंडीशन अगर देखते हैं अपने इंडिया में, ओवरऑल इंडिया में पूरा यानी फर्टिलाइजर का क्राइसिस है। DAP MOP दोनों, यूरिया सब क्राइसिस है। तो यह और इसी कंडीशन में हम लोग आज इस क्रॉप सेमिनार को रखा है कि फार्मर को SSP जैसे DAP नहीं मिल रहा है, उसको DAP के सब्स्टिट्यूट क्या है उसके बारे में बताएंगे, और हमारा पोटास का सब्स्टिट्यूट क्या है उसके बारे में बताएंगे। तो पौधे फार्मर को इधर उधर भटकना ना पड़े कि माइंड सेट बना रखा है हमको DAP डालना है, MOP डालना है। तो उसको माइंड सेट को हम लोग थोड़ा सा ब्रेन वॉश करेंगे फार्मर को, इसके बिना भी काम चल सकता है। तो इसलिए हम आज के इस क्रॉप सेमिनार को रखे हैं। और इसके बारे में फिर दीपशिखा मैडम आई हुई हैं KVK के, वो आपको फार्मर को टोटल जानकारी देंगे, कैसे कैसे न्यूट्रिएंट चाहिए, पौधा को कब कब देना चाहिए। वो टोटल टेक्निकल प्रोग्राम इसीलिए रखा है
तो क्रॉप सेमिनार का मतलब टेक्निकल प्रोग्राम वो हम लोग एक एक करके फार्मर को समझाएंगे। बेवहाय जोंनि कृषकफ्रा जाहा मोनसे उदालगुरि फार्मार्स कअपारेटिभ ससाइटि दङ खेतियकफ्रा निश्चय उदालगुरि फार्मार्स कअपारेटिभ ससाइटिनि जेसेबांखिनि आबादारि दङ बिथांमोना बे इन्डियान पटास थ्रुनि गेजेरजों निश्चय माबा मोनसे सोलोंनो हागोन होननानै आं फोथायो। आरो लोगोसे आंनि इन्डियान पटास लिमिटेडनि रिजनेल मेनेजार आरो बे अल स्टाफ इन्डियान पटास लिमिटेडनि बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावदों। आरो लोगोसे केबिकेनिफ्राय जुदि फैनो हानाय आलासि बिथां एफसिका अजा बिथांखौबो आङो साबायखर बावदों। होमब्ला जोंखौ बिथांमोना जाहाथे बे फार्टिलाइजारनि सायाव जे जोंखौ मोजाङै फोरोंगोन बेखौ जों गथायदों। आरो उन जोलैयावबो जाहाथे इन्डियान पटास लिमिटेडआ जोंखौ जाहाथे बिदिनो आबादनि खामानि मावनायावहाय जोंखौ फोरोंलाङो बेनि थाखाय आङो इन्डियान पटास लिमिटेडखौ बहुत बहुत शुक्रिया दे रहा है। इंडियन पोटास लिमिटेड लास्ट 67 ईयर से भारतीय किसानों के लिए कार्यरत है। इंडियन पोटास लिमिटेड यूरिया, डीएपी और पोटास और एनपीके दूसरे देशों से आयात करके भारत के किसानों के खेत तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। इंडियन पोटास ने देखा है कि भारत का किसान यूरिया के तरफ अपना आकर्षण ज़्यादा रखता है, जबकि उसको बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र का उपयोग करना चाहिए अधिक उपज और अच्छी पैदावार लेने के लिए। तो उस हेतु से इंडियन पोटास लिमिटेड ने आज यहाँ पर क्रॉप सेमिनार का आयोजन किया है। इस क्रॉप सेमिनार के अंदर इंडियन पोटास लिमिटेड आज ये बताएगा कि पोटास डालने से क्या फ़ायदा होता है। किसान को पोटास डालने से उसकी उपज बढ़ती है और उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है। तो उपज को बढ़ाने के लिए और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये क्रॉप सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस सेमिनार के अंदर एक नया प्रोडक्ट इंडियन पोटास ने लॉन्च किया है जिसका नाम पॉली हाईलाइट है। इसके अंदर सल्फ़र, पोटास, मैग्नीशियम और कैल्शियम आते हैं। ये प्रोडक्ट अगर फार्मर अपनी खेती के अंदर यूज़ करता है तो उसे बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन मिलता है और बहुत ही अच्छी उसकी क्वालिटी मिलती है। और उसके साथ भी एमओपी को भी अगर लगाया जाता है तो किसान की जो उपज है वो बढ़ती है। उसके अंदर जो कीट लगता है, जो डिसीज़ लगते हैं वो कम होते हैं और ज़मीन के अंदर मॉइस्चर भी बहुत लंबे समय तक रहता है और उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है। इसलिए हम सभी आसाम के किसान भाइयों से गुजारिश करते हैं कि अपनी हर फसल के अंदर एमओपी को लगाएं और अपनी हर फसल के अंदर पॉली हाईलाइट को लगाएं, जिससे अधिक उपज और अच्छी क्वालिटी को वो ले सकें। सर, हम इसमें एक बात जानना चाहते हैं आपसे, जैसे अभी पोटास और यूरिया ये यूज़ करने के लिए मतलब कितना इको फ्रेंडली होगा? पोटास जो है ये पूरा नेचुरल प्रोडक्ट है। पोटास और पॉली हाईलाइट ये दोनों नेचुरल प्रोडक्ट है। ये किसी प्लांट के अंदर नहीं बनाया जाता है। ये अपना जो सोइल है उसके अंदर से ज़मीन के अंदर के निकाला जाता है। जस्ट लाइक ए कोल को जैसे हम लोग निकालते हैं माइंस में से, उसी तरह से पोटास माइंस से निकलता है और ये पॉली हाईलाइट भी उसी से बना हुआ है। तो ये दोनों ही नेचुरल प्रोडक्ट हैं और दोनों ही इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। इससे कोई केमिकल नहीं है जिससे कि किसान को या एनवायरनमेंट को कोई नुकसान हो। ये दोनों ही नेचुरल प्रोडक्ट है।